evening, friends. Today we are going to discuss a new principle of management, that is fuel, Henry Fuel principle of management. It's a most important topic from your examination point of view, and Henry Fuel principles, it's a most important from the knowledge concern, for the competitive concern, for the your examination concern. It's a most important concept of the most important principle of the management. Okay, my dear students. So before this, already we have discussed the F.W. Taylor scientific principles of management. Okay, hope you all are getting all these points. So today we will discuss Henry Fuel principle of management. Henry Fuel. Henry Fuel, a फ्रेंच इंजीनियर, FOIL, ठीक है, अ फ्रेंच इंजीनियर था. कौन था? फ्रेंच इंजीनियर था, ठीक है ना. अच्छा, फ्रेंच इंजीनियर, इसने एक बुक लिखी थी इन 1916 में. वो क्या, उस बुक का नाम था अ जनरल थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. अ जनरल थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. जनरल थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. और इसी बुक में उसने एक कॉन्सेप्ट दिया मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी. उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया और क्या पूरा एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग कंडक्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स वी शुड फॉलो फॉर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस. एंड हेनरी फ्यूल को हम एक तरीके से मैनेजमेंट का फादर भी हम समझते हैं, ठीक है, फादर भी कहते हैं. तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट के जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हेनरी फ्यूल ने दे रखा है, ठीक है ना. तो आइए इसको देखते हैं क्या है सबसे इम्पोर्टेंट थियरी इनकी. तो देखिए, सबसे पहले हेनरी फ्यूल ने बिजनेस एक्टिविटीज़ को 6 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, ठीक है ना. तो कौन कौन से ऐसी विच टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़, एंड हाउ दे आर क्लासीफाइड. ओके, द फर्स्ट थिंग है टेक्निकल प्रोडक्शन. टेक्निकल प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग. Under technical productions, Henry Fuel consider production or manufacturing. Okay, commercial under commercial buying, selling and expenses means what type of activities a particular head. जैसे उसने 6 हेड बनाए हैं और 6 हेड के अंदर में वो कौन कौन से काम रहेंगे उनको उन्होंने बताया. तो सबसे पहले का टेक्निकल में क्या रहेंगे? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग. ओनली प्रोडक्शन एंड और मैन्युफैक्चरिंग. ओके. In commercial buying, selling and exchange. Buying, selling and exchange means purchasing of goods, selling of goods, and if you want to do exchange from any other thing, then you can consider it under commercial. Third thing, financial means search for an optimum use of capital. Financial means how we will utilize your financial things optimum level, अप टू ऑप्टिमम लेवल, मतलब कैसे आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा एक अच्छे तरीके से आप उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना. फिर सिक्योरिटी किस पर पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी? प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सनस, मतलब दोनों के सिक्योरिटी, दोनों के सेफ्टी पर्सन से सिक्योरिटी को इन्होंने रखा, ठीक है ना. अकाउंटिंग इंक्लूडिंग स्टैटिक्स मीन्स डेटा रिसर्च वगैरह सब किस में रखा है? अकाउंटिंग में रखा है. फिर छठा पॉइंट रखा है मैनेजरियल में क्या रखा है? मैनेजरियल में इन्होंने रखा है क्या? फॉरकास्टिंग and planning, organization, commanding, coordinating and controlling. These all points are they have considered under 6 activities. Getting you all are, so you can see this is the most important thing. Okay, you should know. Next, elements of management. Henry Ford decided there are some elements under managements which we have to consider. Okay, first one is forecasting and planning. Forecasting and planning, both. Planning is forecasting. Sometimes some people say is what planning is forecasting. Yes, definitely. Without planning we cannot do anything. Okay. Second, organizing. Third one is commanding. Fourth one is controlling and coordinating, and fifth one is controlling. So these all are the elements of the managements which we have to consider under the organizational structure. Okay. The next, managerial qualities and training. What qualities should have by a managers? All these things we should consider under for the managers. First thing is physical, means there are some qualities which a manager should have. Okay, first one is physical health and vigor. Okay, mental ability to understand, analyze and adaptation. Okay.
Third one is moral value he should know. Okay, next moral, and then educational, means he should be educated. Okay, technical, knowledge of technical machines or working progress, technically knowledge. एक्सपीरियंस अराइजिंग फ्रॉम वर्क प्रॉपर, मीन्स अगर वो उसके पास एक्सपीरियंस, मतलब ये 6 काम 6 क्वालिटीज़ मैनेजर के अंडर में होने चाहिए। और 6 क्वालिटीज़ को उसने कैसे डिफाइन किया है? मैनेजर कॉलिंग फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशनल, टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस। और उसमें क्या है, हर काम को एक्सप्लेन कर रखा है। क्या? फिजिकल में हेल्थी होना, मतलब उसका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए। मेंटल में एबिलिटी, किसी चीज़ को समझने की शक्ति होनी चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड अडॉप्ट होनी चाहिए। मॉरल, एनर्जी होनी चाहिए, फॉर्मनेस होनी चाहिए, इनिशिएटिव होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, टैक्ट होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर। मतलब उसके जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसको इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, ये उसको सिखाने के लिए इन सब सारी चीज़ों को देना चाहिए। मतलब एक मैनेजर को ये सब सारी क्वालिटी होनी चाहिए। एजुकेशनल में वो उसको जनरल एक्वेंटेंस विद द कॉमन मैटर्स, ठीक है ना, उसको जानकारी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज, ठीक है ना। टेक्निकल नॉलेज ऑफ मशीन्स एंड वर्क प्रोसेस, कैसे वो काम किया जाता है, ये सब सारी टेक्निकल नॉलेज जानकारी। और एक्सपीरियंस से मतलब काम के थ्रू वो अराइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बस ओनली थियरी कॉन्सेप्ट वो जानता हो, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए जनरल में। तो इस तरीके से हेनरी फ्यूल ने इन सब सारी चीज़ों को, मैनेजमेंट को, कॉन्सेप्ट्स को दिया है। अब जो प्रॉपर प्रिंसिपल हैं, मेन प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के, जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कितने हैं? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इसको हम देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हर तरीके से हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो कैसा प्रिंसिपल दिया हेनरी फ्यूल ने, सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने क्या रखा है? डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। आइए समझते हैं इसको, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क में है, हेनरी फ्यूल ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि मीन्स काम, द वर्क शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कॉम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट पर्सन्स सो दैट एन एम्प्लॉइज कंसंट्रेट ऑन ओनली टाइप्स ऑफ वर्क। जैसे मतलब कोई एक्सपर्ट है किसी काम में, तो वो उसी काम को, राइट पर्सन्स को राइट प्लेस पे उस काम का डिवीज़न होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी को आता है क्या, कुदाल चलाना, कुदाल चलाना आता है, अब उसको हम कंप्यूटर चलाने के लिए दे देंगे तो वो काम एफिशिएंट तरीके से उस काम को नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो मीन्स राइट पर्सन्स को राइट जो काम का एलोकेशन होना चाहिए, एफिशिएंसी को देख के होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस को देख के होना चाहिए, टैलेंट को देख के होना चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल बैकग्राउंड देख के होना चाहिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या लिखा है। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिवीजन ऑफ द टोटल टास्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स एंड एलोकेटिंग these compact jobs in different persons so that employee can concentrate only on type of work, ठीक है ना, जो उसी टाइप का वर्क करता हो। ओके, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट कॉजेज बाय चेंजेस फ्रॉम वन टाइप ऑफ वर्क टू अनदर। मतलब एक कोई काम कर रहा है और वो एक्सपर्ट है उस काम में, तो इससे आपका टाइम सेव होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिजल्ट आएगा, वो और ज़्यादा एक्सपर्ट बनता जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए, ये ना कि जो डिवीज़न ऑफ वर्क करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे काम होते हैं, तो उन काम को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्लियर तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कहने का मतलब है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी पर्सन्स को ऑथोरिटी देना चाहिए जो उसकी वैल्यू को समझे, ठीक है। अब जैसे ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? अधिकार, ठीक है ना, राइट देना, मीन्स क्या देना, उसको राइट देना। अच्छा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इन राइट्स की, अब जैसे मैंने ऑथोराइज कर दिया किसी पर्सन्स को, या किसी बिजनेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी ऐसे पर्सन्स को ऑथोराइज कर दिया जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता ही नहीं, ही डजंट गेट द मीनिंग ऑफ द ऑथोराइज, मतलब राइट्स को वो समझता ही नहीं, तो ऐसे पर्सन्स को बिल्कुल भी ऑथोराइज नहीं करनी चाहिए काम के लिए, ठीक है ना। तो हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं? हेनरी फ्यूल कहते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिसको समझ है उसी को ऑथोराइज करना चाहिए, उसी को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए, क्योंकि जो अथॉरिटी लेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस काम की लेगा। तो देखिए क्या कहते हैं, अथॉरिटी इज द राइट टू गेट वर्क डन
from other and responsibility is the obligation to perform the assigned task. Clear ना? तो अच्छा, फिर anyone who exercise authority must accept responsibility for his work. Clear. Similarly, one who is held responsible should be given the necessary authority. Authority and responsibility are coexistence and they must go hand in hand. Authority without responsibility leads to irresponsible behavior, while responsibility without authority will make a person ineffective. Okay ना? Means वो काम इनइफेक्टिव हो जाता है जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ों का, जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो काम क्या होता है, इनइफेक्टिव हो जाता है. देयरफॉर देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सी ये सेकंड प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स का. तो ये आपको पहला प्रिंसिपल क्या गया, डिवीजन ऑफ वर्क. सेकंड क्या आ गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज इसको अगर नहीं याद होगा तो आपके लिए आगे परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, अब हम देखते हैं थर्ड क्या है, फर्म में डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए. हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, इट इज़ मस्ट फॉर द एनी बिजनेस कंसर्न. इफ़ देयर इज़ नो एनी डिसिप्लिन, तो क्या होता है, जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो चीज़ें अच्छे से नहीं होंगी, चीज़ें फॉर्मली नहीं होगी, चीज़ें मतलब एक फॉर्मल वे में नहीं चल पाएंगे जब डिसिप्लिन नहीं होगा. तो देखिए क्या कहते हैं हेनरी फ्योल, डिसिप्लिन इम्प्लाइज ओबीडियंस. डिसिप्लिन क्या करता है, ओबीडियंस, respect of authority and observance of the established rules and regulations. Discipline is essential for the smooth running of every organization. Means there is a discipline, there is a rule regulations. तो क्या उसकी जो रनिंग होती है क्या स्मूथ होती है, मतलब वो कोई बाउंडेशन, कोई चीज़ें, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कोई बैरियर नहीं आता, ऑलरेडी हर काम बहुत स्मूथली तरीके से होता जाता है. अकॉर्डिंग टू फ्यूल, गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर रूल्स एंड बिल्ट इन सिस्टम ऑफ पेनल्टीज विद हेल्प टू मेंटेन डिसिप्लिन. मतलब अगर ये हेनरी फ्योल ये भी कहते हैं, अगर डिसिप्लिन टूटता है या डिसिप्लिन चीज़ें नहीं मतलब फॉर्म करते हैं, जो भी कंपनी के सुपरवाइज़र हैं, एक्सिक्यूटर्स हैं, तो उस पर पेनल्टी भी लगानी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन रहने से चीज़ें बहुत स्मूथली तरीके से, बहुत रनिंग वे में चलती रहती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेपरेटली कभी कभी पूछा जाता है, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा. ठीक है ना. यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, मतलब वन हेड होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ कमांड होना चाहिए, जो भी चीज़ कंट्रोल नहीं चाहिए, किसी एक पर्सन्स के द्वारा होना चाहिए. ये ना कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीके से कंट्रोल करने लगते हैं चीज़ों को, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होने शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. ठीक है ना. तो मतलब कोई भी चीज़ अगर कंट्रोल हो रही है तो देयर शुड बी ओनली फॉर वन मैनेजर, वन हेड, उसका एक जो इंचार्ज होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए. ठीक है ना. तो ये यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एन एम्प्लॉय शुड receive order from one superior only and be accountable to him. Getting over? Okay. No persons can serve several masters for at the same time. अच्छा, कोई भी एम्प्लॉय है, 10 मास्टर उसके हो जाएंगे, 10 इंचार्ज हो जाएंगे, तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगा. फिर वो क्या करेगा, एक को मतलब एक का बहाना दूसरे पे करेगा, दूसरे पे तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे. तो एक मास्टर उसका होना चाहिए और एक ग्रुप का एक ही मास्टर होना चाहिए, और उसी के असाइन टास्क को क्या करना है, उसको परफॉर्म करना चाहिए. If a subordinate has more than one boss, dual command will undermine authority, weaken discipline, divide loyalty and create confusion, delays. मतलब ये सब सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, डिले होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसिप्लिन वीक हो जाएगा, लॉयल्टी डिवाइड हो जाएगी. तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो चाहिए, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. फर्म ने जो प्री डिटरमाइंड गोल सेट कर रखा है, फर्म उसको अचीव नहीं कर पाएगी. तो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए. ठीक है ना, for the smooth working of the concern. Okay. फिर वायोलेटिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड लेट्स द फॉलोइंग एडवर्स. मतलब अगर यूनिटी ऑफ कमांड थोड़ा सा भी अफेक्ट होता है तो उसके लिए क्या होती है चीज़ें, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स होना हो जाता है, मतलब ऑर्डर्स को ओवरलैप करने, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, देख लेते हैं क्या है. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाते हैं, डिवाइड लॉयल्टी एंड डिसओबीडियंस होना आता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहती है, डिसरेस्पेक्ट फॉर सुपीरियर्स. ये 6 एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं. तो ऐसे चीज़ों को हमको नहीं करना है. फिर नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में क्या है देखते हैं. अच्छा,
कोई भी चीज़ है, कोई इवन मास्टर के द्वारा ही वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए. मीन्स देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान for a group of activities having the same objective. In another words, each group of activities with the same objective must be one plan of action, must be under the control of one supervisor. Without unity of directions, unity of actions, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट आर नॉट पॉसिबल्स. गेटिंग वॉलर मतलब जो डायरेक्ट कर रहा है चीज़ों को वो एक होना चाहिए, मतलब उसी के दिशा निर्देशन में, उसी की गाइडलाइंस में वो काम होना चाहिए. ठीक है ना. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड रिलेट टू द फंक्शनिंग ऑफ पीपल, वेयर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज़. ठीक है ना. आप लोग कहेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में दोनों तो सेम ही है. नहीं नहीं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज़, एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, फंक्शनिंग ऑफ पीपल, वेयर एज यूनिटी ऑफ, क्लियर ना. यूनिटी इज डायरेक्शन डजंट ऑटोमेटिकली लीड टू यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू द कैन नॉट यूनिटी ऑफ कमांड विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस. मतलब वहाँ पे पीपल को हम डायरेक्ट कमांड करते हैं और यहाँ पे अपने एक्शंस को हमें क्या परफॉर्म करना उसको हम डायरेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्शन करते हैं. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रिलेट टू द फंक्शनिंग ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशंस. अच्छा, ये पूरे फंक्शंस को, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस को डायरेक्ट करता है. नेक्स्ट फिर कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ, नेक्स्ट प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. मतलब फर्म का, अब जैसे मान लीजिए आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. ओके, इफ़ यू आर डूइंग वर्क इन ए ऑर्गेनाइजेशंस एंड आपका पर्सनल इंटरेस्ट को आप प्रीफर नहीं देंगे, आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रीफर कर देंगे. ठीक है ना. तो क्या सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. आप पर्सनल इंटरेस्ट को अपने प्रीफर नहीं करेंगे, आप जो बिजनेस का और इंटरेस्ट होगा, जिसमें बिजनेस का फ़ायदा होगा, जिसमें बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा, आप वो डिसीजन लेंगे. मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप किसी पद पे काम कर रहे हैं, किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, और आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम स्टार्ट कर दिए. नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट. आइए देखते हैं क्या लिखता है. एन ऑर्गेनाइजेशन बिगर देन इंडिविजुअल. ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडिविजुअल से ज़्यादा बड़ा है. Therefore, the interest or goals of the organization must prevail upon the personal interest of individuals. Okay, in order to achieve supremacy of the group, managers must set a good example that they must be firm but reasonable in dealing with the subordinates. Constant supervision is necessary to prevent promotion of personal interest and the cost of the organization. In order to achieve subordination and individual interest to common interest is a necessary that employees are honest, सिंसियर और लॉयल. मतलब इससे क्या होता है कि एक बहुत बैड इफेक्ट भी पड़ता है और लॉयल्टी भी एम्प्लॉय की बनी रहती है. म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिकॉन्साइल्ड थ्रू द म्यूचुअल एग्रीमेंट. ओके, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मतलब एक अच्छा रेम्यूनरेशन कंपनी को देना चाहिए अपने वर्कर्स को, ताकि वो पूरी फुली सेटिस्फाइड रहे. ओके, नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रलाइजेशन है, जैसे पावर का सेंट्रलाइजेशन है वो और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों अच्छे तरीके से होना चाहिए. मतलब कहने का सेंस क्या है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब पावर को सेंटर कर दिया, पावर को एक जगह ही फिक्स कर दिया. जैसे मान लीजिए आपके डीएम है, डीएम अगर अपनी सब कुछ पावर इसके हाथ में है, ठीक है, अगर ये सारा काम खुद ही करना स्टार्ट कर दे तो कभी गोरखपुर डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. वहीं ये अपने क्या करता है, अपने अधिकारों को डिफरेंट में बांट देता है. तो कोई आरटीओ है, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष है, कोई जीडीए का अध्यक्ष है, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो कोई मतलब तमाम ऑफिसर्स हैं इसने अपॉइंट कर रखे हैं, अपने पावर दे रखे हैं और उसके बाद वो सारे काम करते हैं. तो इस तरीके से काम होता है. सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये अच्छे तरीके से होना चाहिए, इनका प्रपोर्शन अच्छा होना चाहिए. अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ तो फिर ये काम गड़बड़ हो जाता है. नेक्स्ट, स्केलर चेन. स्केलर चेन का मतलब क्या हुआ, इट रेफर टू द चेन ऑफ सुपरवाइजर रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेटली अथॉरिटी टू द टॉप. मतलब देखिए, फर्म में हायरार्की सिस्टम होता है. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, हायरार्की सिस्टम होता है. हायरार्की सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए
ए ऑफिसर है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक चैनल होता है और इस चैनल के थ्रू ही ये चीज़ कम्युनिकेशन चलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए जो एक्सिक्यूटर है तो वो सी को ही रिपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डायरेक्ट ए को रिपोर्ट करे, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है कि अगर ये सी को रिपोर्ट नहीं करेगा या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं करेगा, या अपने लेवल के अधिकारी को या उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल को अधिकारी को ना बता के डायरेक्ट ऊपर के लेवल के अधिकारी पे जाएगा, तो वहाँ पे क्लैश क्रिएट हो जाएगा और एम्प्लॉयज़ में क्या हो जाएगा, क्लैश क्रिएट हो जाएगा। जब क्लैश क्रिएट हो जाएगा तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे। तो जो स्केलर चेन इसने कहा है और हेनरी फ्यूल ने कहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए वो सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये होना चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप सेम लेवल पे हो, कम्युनिकेशन सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एफ लेवल का, जैसे मान लीजिए देखिए आपके सामने इसने चार्ट बना के दे रखा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे एफ अपने इंडिविजुअली से बात कर रहा है, उसके बाद ऐसा नहीं कि एफ डायरेक्टली ए से बात करेगा, एफ डायरेक्टली ए से बात करेगा, ये अपने सीनियर्स को बताएगा, अपने सीनियर्स को बताएगा, ऐसे सीनियर्स को बताते करके ये स्टेप वाइज फिर ए को पता चलेगा। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन करेंगे फॉर्म में, इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस भी कहते हैं। ओके फिर कहते हैं ऑर्डर क्या है, 10th देयर मस्ट बी मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर इन एंटरप्राइज। मटेरियल ऑर्डर एम्प्लॉयज ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट्स प्लेस। ओके ना, सब कुछ अपने सही तरीके से होना चाहिए। मटेरियल ऑर्डर है तो मटेरियल मतलब ऑर्डर सही तरीके से होना चाहिए। और फिर क्या, सिमिलरली सोशल ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज अपॉइंटेड प्लेस। ओके ना, मतलब जो जिसकी प्लेस है उसी प्लेस पे वो चीज़ें रहनी चाहिए, मतलब एक सही प्रॉपर ऑर्डर में वो काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई काम हो जाता है कभी कोई काम होता है, मतलब जो सेंसिंग है काम करने की, प्रॉपर सेंसिंग है उस काम के अकॉर्डिंग। द राइट मैन एट द राइट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इक्विटी क्या है, मैनेजमेंट शुड ट्रीट द एम्प्लॉयज़ विद द जस्टिस एंड काइंडनेस। मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के साथ जस्टिस और काइंडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। देयर शुड बी इक्विटी इन द treatment of dealing with the subordinates and no discrimination should be made between them. Nepotism and favoritism should not exist as these are injuries and motivation of moral implement. इक्विटी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समानता, फॉर्म में एकजुटता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। मैनेजमेंट को चीज़ों को बहुत एक तरीके से अच्छे वे में लेना चाहिए और सबको इक्विटी लेवल से ही देखना चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब एक जैसे जो काम है वो सही तरीके से चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इट टेक्स टाइम टू लर्न एंड गेट यूज टू ए जॉब, देयरफॉर रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, मतलब अपने एम्प्लॉय को सर्विस की सिक्योरिटी रहे उसको। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक स्टेबिलिटी देंगे एम्प्लॉय को, तो जब एम्प्लॉय स्टेबल रहेगा वो एक तरीके से अच्छा काम करेगा। जब वो अपने मतलब उसको सर्विस की गारंटी रहेगी, सर्विस की सिक्योरिटी रहेगी, तो वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। तो ये 12th प्रिंसिपल था। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, थर्ड इनिशिएटिव, जितने भी एम्प्लॉय होने चाहिए सारे इनिशिएटिव एक्शन लेने के लिए होने चाहिए, मतलब लेने के लिए रेडी होने चाहिए और हमेशा कोई ना कोई चीज़ इनिशिएट करना चाहिए। जैसे मतलब असाइन टास्क इन अ बेटर वे। ओके, इनिशिएटिव इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर सबऑर्डिनेट शुड बी इंस्पायर्ड टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। तो इस तरीके से इनिशिएटिव लेने का, रिस्क लेने का, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग हिम्मत होनी चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट है एस्प्रिट डी कॉर्प्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम अप्रोच, मतलब जो काम होता है वो पूरे टीम के लिए होता है, ये ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए हो गया और इंडिविजुअल की वाहवाही हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी काम हो रहा है वो टीम अप्रोच में होना चाहिए और कोई भी काम सक्सेस होता है तो उस टीम की जीत होती है, न कि पूरे एक सिंगल कैप्टन की जीत होती है। तो इस तरीके का टीम अप्रोच के थ्रू हम काम होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बोथ शुड बी मेंटेन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, आइए देखते हैं क्या कहता है। देयर मस्ट बी टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ ए स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटरप्राइज लाइज इन द कोऑपरेशन
of individual contribution on account of the esprit de corps. Okay ना, तो group effort are more than aggregate of individuals. So you can see here ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने हेनरी फ्योल ने दी है. इसको आप लोग अच्छे से एक बार और पढ़िएगा ध्यान से. अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है ना. तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों ने देखा. हेनरी फ्योल का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आप देखेंगे, समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे पूछेंगे, ठीक है ना. एक एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा देन यू कैन आस्क मी. फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच.